ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी जी जुड़े हुए हैं, who is an eminent thinker, writer, and ex-professor. In fact, in fact, the great fascination, a big fascination of this plenary session is that Ram Punyani ji is there amongst us. So there are many who might not know much about him. So I would like to introduce him briefly to you. Ram Punyani ji is a professor of biomedical engineering and former senior medical officer affiliated with the Indian Institute of Technology, Bombay. He began his medical career in 1973 and served IIT in various capacities for 27 years, beginning in 1977. He has been involved with human rights activities and initiatives to oppose all sorts of fundamentalism in India. He is associated with various secular initiatives and has been part of various investigation reports on violation of human rights of minorities. He has also served as part of an Indian People's Tribunal that investigated the violation of rights of the minorities in the states of Odisha and Madhya Pradesh. He regularly conducts seminars and workshops on topics related to the threat of communal politics, human rights, values of secularism, the Uniform Civil Code debate, the partition tragedy, Kashmiri imbroglio, and others. He is known for his articles and essays, which regularly appear in Indian magazines and newspapers. He also runs a fortnightly e-bulletin issue in secular politics. He has won many awards, to name just a few. Maharashtra Foundation Award for Social Awareness about Threat of Communal Politics in 2002. He has also garnered National Communal Harmony Award in the year 2007. So while I'm reading your introduction, this is giving me goosebumps, in fact. He has also got NCHRO's Mukundan C. Menon Award in the year 2015. And as far as his books are concerned, he has been a prolific writer indeed. He has contributed a number of books. For instance, he has contributed Communalism, What is False, What is True, Communal Politics, Facts versus Myths, Religion, Power and Violence, Indian Democracy, Pluralism and Minorities. I'm reading out the books very hurriedly because we are running short of time and we wish to listen to Sir. Terrorism, Facts versus Myths, Fundamentalism, Threats to Secular Democracy, Communalism, India's Nemesis, Dalits and Social Justice, Deconstructing Communism in India, सामाजिक न्याय एक सचित्र परिचय, communal threats to secular democracy, Malegaon to Ajmer, the trail of terror, caste and communalism, religion and politics, making of a nation, Atangwad explained, a graphics account. Now, these are just a few chosen ones, like he has been into medical sciences, so he has contributed a number of books he has written a number of books on medical science. He has a very big introduction, but I just read out the selected part to you, dear participants. Now, I very humbly request Dr. Punyani to please present his lecture. We are eagerly waiting to listen to you. Yeah. Please. आपका बहुत धन्यवाद. मैं हिंदी में बोलूँगा, चलेगा? हिंदी विल बी ओके? प्लीज. थैंक यू. तो दोस्तों, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके बीच में इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय चर्चा के समापन सत्र में बुलाया. और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि आपने भगत सिंह, राजगुरु और इनके शहादत के दिवस को सांझी शहादत, सांझी विरासत के रूप में और आज के भारत को में उसका प्रतिबिंब के रूप में बनाई है. ये मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात है, क्योंकि और हम लोग जनरली शहादत दिवस और दूसरी चीज़ों को मनाते हैं, पर उनसे हम सीखकर आज के समाज को एक अच्छी दिशा कैसे दे सकते हैं, वो हमारे लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए.
और आज की सेमिनार में मुझे आपका वही फोकस दिख रहा है, एक तरफ सांझी विरासत और दूसरी तरफ आज का भारत। खैर, इन पर आने के पहले थोड़ा सा भगत सिंह का तो खैर आपने पेपर्स प्रेजेंट किए होंगे, बात की होगी, पर मैं भगत सिंह के बारे में एक तो जो मुझे चीज़ें बहुत गहराई से मुझे छूती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह खैर जैसे सब लोग जानते हैं, 23 साल 8 महीने की उम्र पर ही उन्होंने फांसी की सज़ा को स्वीकार किया, फांसी के फंदे को चूमा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय उन पर बहुत दबाव था, परिवार का और दूसरे लोगों का, कि आप अंग्रेज़ों से माफ़ी माँग लीजिए, अभी तो आपके सामने लंबी ज़िंदगी पड़ी है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से माफ़ी माँगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया, वो देश की आज़ादी के लिए किया, और फांसी तो क्या, फांसी के बदले अगर मुझे ये फायरिंग स्क्वाड के सामने रख दें, तो मुझे वो ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि मैं एक विद्रोही हूँ, मैंने आंदोलन किए हैं और मैं इस सरकार की आक्रामक सत्ता के, इस सरकार की क्रूर सत्ता के मैं खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे इनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लगे तो ये मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक बात ये उनकी लगी, और दूसरा याद रखिए कि वो, जैसे आप लोग सब लोग प्रोफेसर्स हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, भगत सिंह की पढ़ने में और लिखने में कितनी रुचि थी, इस बात को मैं केवल रेखांकित करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत उस पे किया होगा। जब वो लाहौर जेल में थे, कि तो लाहौर जेल के जेलर को एक बड़ी परेशानी हो गई। परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि लाहौर जेल की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी, वो भगत सिंह ने चाट ली, सब पढ़ ली, नई नई किताबों की मांग करते रहे, और उसके आधार पर ही लाहौर के जेलर को एक नया अनुभव मिला कि एक है तो कैदी, फांसी की सज़ा होने वाली है, और पढ़ाई में इतना मशगूल है, एक एक के बाद एक किताब पढ़ते रहता है। और उनके जीवन की एक बहुत प्यारी घटना फांसी के 10-15 मिनट पहले की है। जब उनको बुलाया गया, चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो वो कहते हैं मुझे 5 मिनट का वक्त और दीजिए, मैं किताब खत्म कर रहा हूँ, ये किताब मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं आपके साथ साथ आऊँगा। तो ये इतनी प्यारी सारी चीज़ें जो उनके जीवन से जुड़ी हैं, वो मेरे ख्याल से हमारे जीवन के लिए, हमारी सोच के लिए बहुत संदेश है। आज जहाँ सोशल मीडिया का युग है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरा हर जगह डोमिनेट कर रही है, उस जगह भगत सिंह जैसे लोग, जो इतनी कम उम्र में दर्शन के बारे में, संस्कृति के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, देश के बारे में इतना सोचे, उनसे हमें ये सीखने की ज़रूरत है, और यही बात हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देने की ज़रूरत है। दूसरा, अब उनके बारे में जुड़ी हुई जो कुछ किंवदंतियाँ हैं, मैं उनको हटा दूँ, उसके पहले मैं बाद में मैं सांझी विरासत पे आना चाहूँगा। ज़्यादातर आजकल बहुत एक नकारात्मक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है समाज में, जिसका जुड़ाव, थोड़ा जुड़ाव भगत सिंह से है। एक बात कही जाती है कि देखो भाई, ये जो कांग्रेस के लीडर थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भगत सिंह की कोई परवाह नहीं की। ये लोग, महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, पर उन्होंने उन्हें नहीं बचाया। अब ये बात सच है कि महात्मा गांधी उन्हें नहीं बचा सके, ये बात याद रखिए आपने। लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने लगातार लिखा कि भगत सिंह एक नौजवान है, क्रांतिकारी है, पूरे देश के लिए समर्पित है, देश में लोकप्रिय है, देश की जनता उसको चाहती है, आप उसे फांसी की सजा न दें। अब इसमें लॉर्ड इरविन ने नहीं माना, तो मजबूरी से गांधी जी ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि उस समय जो इरविन गांधी पैक्ट होने वाला था, उस पर पूरे देश की निगाहें थी। पूरा देश चाहता था कि वो पैक्ट हो और हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिले। दूसरी एक जो अफवाह उनके जीवन से जुड़ी हुई लगाई जाती है, वो ये कि जब वो जेल में थे तो अब उन्हें जेल में मिलने कोई नहीं आया। खास तौर से नेहरू के बारे में ये बात कही जाती है कि वो उनसे मिलने जेल में नहीं आए। तो आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू भी इन नौजवानों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कई जगह लिखा भी है, और जिस दिन वो इनसे मिलने लाहौर जेल गए, उस समय उन्होंने बहुत दुख से लिखा, मैं जेल में तो गया इनसे बातचीत करने, इनसे मिलने, पर मुझे बहुत दुख हुआ इनकी हालत देखकर।
इनकी हालत देखी मैंने, ये लोग हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सबके जो शरीर हैं सिकुड़ गए हैं, ये लोग बोलने की हालत में नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने इसमें लिखा और इसी बात को ट्रिब्यून नाम के अखबार ने, जो लाहौर से भी निकलता था, उसने दूसरे दिन रिपोर्ट किया कि भगत सिंह को मिलने जवाहरलाल नेहरू आए थे और ऐसी ऐसी घटना हुई। तो ये उनके जीवन से जुड़ी दो चीज़ों को मैं सामने रख दूं। और तीसरी बात ये भी रख दूं कि भगत सिंह जो थे विचारों में बहुत परिपक्व थे, विचारों में बहुत परिपक्व थे। शुरू से जैसे उन्होंने लिखना चालू किया गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में उनके असिस्टेंट के रूप में, से आखिर तक वो लगातार अपना योगदान देते रहे। और उनके योगदान की दिशा थी समाज में गरीब, मजदूर, किसान और दलित, इनके अधिकारों के लिए बात करने की थी, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बात करने की थी और एक ऐसे रास्ते पर चलने की थी जिस पर चलकर देश आजाद हो। एक बात यहाँ मैं रेखांकित और करना चाहता हूँ कि ज्यादातर भगत सिंह को बंदूक से और क्रांति, इस प्रकार की हिंसक क्रांति से जोड़ा जाता है। अब ये जो पहली बार जीवन के जो साथ में आए, जोश में आए, तो उस समय लाला लाजपत राय को, जो उस समय प्रोसेशन में जा रहे थे जलियांवाला बाग के विरोध में, उस समय उन्हें लाठी से मारा और उनको गिरा दिया, जिससे उनकी लाला जी की मृत्यु हुई। तो नौजवानों में एक रोष था, वो बदला लेना चाहते थे। तो इसलिए भगत सिंह उस समय जो अपने राजनीतिक जीवन में बहुत नए थे, वैसे भी वो आखिर तक 23 साल में उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी क्षण देखा, तो वो ऐसी थे। तो उस समय उन्होंने बदले के आधार नाम पर, जो क्रांतिकारी ग्रुप से वो जुड़े थे, उन्होंने फैसला किया कि सॉन्डर्स की हम हत्या करेंगे। पर खैर, इस सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जुड़े होने के कारण ही उनको फांसी की सजा मिली। और दूसरा याद रखिए कि वो जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर 2 पर्चे डाले सुखदेव और राजगुरु के साथ, वो पर्चे उस दिन डाले जब पार्लियामेंट में मजदूर विरोधी कानून पास किए जा रहे थे। और उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी की हत्या करूं। उन्होंने कहा बहरों को सुनाने के लिए आवाज पैदा करना, ये मेरा उद्देश्य था। और खैर, जितना आपने पढ़ा होगा, मैंने भी इसको पढ़ा है कि आखिर में उनके पीछे योजना क्या थी, वो क्या करना चाहते थे। उस समय आप देख लेंगे, आज का मीडिया का मैं एक इंसिडेंटल कमेंट दे देता हूँ कि आज का मीडिया भी बहुत जो उसकी जिम्मेदारी है, फोर्थ पिलर ऑफ द एस्टेट, वो काम नहीं कर रहा। वो ज्यादातर जो लोग सत्ता में हैं उनकी चापलूसी कर रहा है ज्यादातर मीडिया। उस समय भी मीडिया आम आंदोलन की बातें इतनी जनता तक नहीं ले जा रहा था। तो भगत सिंह की जो योजना उन्होंने बनाई कि अगर उन्हें सजा हुई तो वो अदालत में अपना बयान देंगे, जिसके माध्यम से वो अपने संदेश को पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब आप अदालत में बयान देंगे तो ये बयान सब तक जाएगा, अखबारों में रिपोर्टिंग होगी, और इसीलिए उनका जो अदालत के बयान है वो इतने महत्वपूर्ण हैं। उसने पूरी जनता तक एक आज़ादी का पैगाम, गरीब लोगों के, मजदूरों का पैगाम, ये उनकी ज़रूरतें, उनके अधिकार, इनकी बातों को वो आखिर तक ले गए। अब जहाँ तक उनके विचार थे, वो समय था जब पूरी दुनिया में जो भी साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन थे, ज्यादातर उन पर वामपंथ का प्रभाव था, कार्ल मार्क्स का प्रभाव था, वर्ग व्यवस्था के बारे में जो बात करते थे उसका प्रभाव था, वो उसके इसमें थे। और खैर, उनके विचारों से वो नास्तिक भी थे। यहाँ मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि आज नास्तिकता को अनैतिकता से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है मानो नास्तिक होना यानी अनैतिक होना है। तो ये भगत सिंह ने देखा जिस प्रकार से लोग धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला रहे हैं, मंदिर, मस्जिद और पूजा स्थानों पर किस प्रकार के खराब काम हो रहे हैं। अब उन्होंने उस समय ये बात लिखी। आज के समय के हालात वो देखते कि जहाँ धर्म के नाम पर बहुत सारे बाबा लोग
या तो जेल के पीछे हैं या इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं जिससे समाज के आम लोगों को बहुत अलग प्रकार की तकलीफ होती है। तो आज के समय वो क्या कहते हैं, ये सोचने की बात है। तो उनका वो जो पैम्फलेट है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, नास्तिक हूँ क्यों में, उन्होंने एक तरफ नैतिकता, लोगों की डिग्निटी और लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया, दूसरी तरफ ये बताया कि कैसे धर्म के नाम पर समाज में एक ऐसी व्यवस्था को लादने की कोशिश की जा रही है जिसमें अन्याय हो, अत्याचार हो। और शायद मेरा ऐसा अंदाज है कि उस समय सामंतवाद, जमींदारी, फ्यूडल सिस्टम को भी वो समझते थे। और फ्यूडलिज्म, जमींदारी, राजाशाही, ये ज्यादातर धर्म गुरुओं के अलायंस में चलती है, उनसे मेलजोल में चलती है। जैसे कि हम सब लोग सोचते हैं यूरोप में किंग एंड द पोप इनकी सत्ता थी, पर उसी समय मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जमींदार और धर्मगुरु, इनकी सत्ता सामंती समाज में थी। और उनकी सत्ता सामंती समाज में थी इसलिए आप देखिएगा कि राजा के साथ राजगुरु रहता था, नवाब के साथ शाही इमाम रहता था। और हमारे महाराष्ट्र में भी एक उसके लिए शब्द है शेठ जी भट्ट जी, यानी जमींदार और धर्मगुरु का गठबंधन, जिसके आधार पे वो गरीब किसानों का शोषण करते हैं। एक तरफ बताते हैं कि राजा ईश्वर का बेटा है और ईश्वर की अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे तो आपको नर्क में, जहन्नुम में या हेल में जाना पड़ेगा। अब ये तीनों अलग अलग जगह हैं, ये कोई जानता नहीं है कि वो एक ही जगह पे है कि उसका तीनों में कोई लैंड डिस्प्यूट या क्लासिफिकेशन है, वो मैं नहीं जानता, नर्क, जहन्नुम या हेल। तो ये एक धर्मगुरुओं ने विचार बना रखे थे। शायद इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर भगत सिंह ने नास्तिकता का रास्ता अपनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि धर्म गुरुओं की पकड़ समाज में चलती रहे। उनका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि किसान, अब किसान का उल्लेख आ गया तो आज की बात करना पड़ेगा। किसान, उसका सबसे बड़ा शोषण का अधिकार, हथियार जमींदारी व्यवस्था थी, और जमींदारी को लेजिटिमाइज, वैधता देने वाले धर्मगुरु थे। तो उन्होंने धर्म के उस पहलू पर जोर देकर अपना एक रास्ता चुना। तो खैर, और बाद में चलकर एक बात और भी बता दूं कि शुरू में जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने हिंसा के रास्ते को स्वीकार किया, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु एक भारतीय ब्रिटिश लाठियों से मारा गया, ये नौजवानों के लिए स्वीकृत नहीं था, इसलिए उन्होंने बदले के रूप में उसको मारा। पर बाद में चलकर भगत सिंह अपनी लेखनी में लिखते हैं कि जन आंदोलन ही देश की मुक्ति का रास्ता है। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी जो जन आंदोलन के माध्यम से अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़ रहे हैं, अलग अलग जातियों के लोगों को जोड़ रहे हैं, स्त्री और पुरुषों को समाज के क्षेत्र में, वही एक सही रास्ता है जिससे हमको आज़ादी मिलेगी। तो एक बात तो उन्होंने ये भी कही, जन आंदोलन की बात कही। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जन आंदोलन हो तो हम समता, बराबरी की तरफ अपने समाज को ले जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं भगत सिंह का बहुत आदर करता हूँ कि एक नौजवान के रूप में उन्होंने हिंसा के रास्ते को अपनाया, पर जैसे ही वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि एक कोई भी शासक हो, उसके पास पूरी व्यवस्था रहती है, राज्य व्यवस्था रहती है, और उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का जो रास्ता अपनाया, उससे वो पूरे देश के लोगों को जागरूक कर सके। अब यहाँ आपने जिस सूझबूझ के साथ साझी विरासत की बात कही, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि भारत निश्चित रूप से एक साझी विरासत है। और जब भगत सिंह थे तो भगत सिंह के सामने बहुत सारे विकल्प थे। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करने वाली मुस्लिम लीग थी, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली हिंदू महासभा थी। इसको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, इन बातों को स्वीकार नहीं किया कि धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उससे पूरा अलग होकर उन्होंने अपने विचारों का विकास किया। पर जहां तक भारत का सवाल है, भारत किसी एक धर्म के आधार पे नहीं चल सकता। भारत ये बहुधर्मीय, बहुक्षेत्रीय, बहुभाषाई एक देश है, जहां कई लोग मानते होंगे कि इस्लाम विदेशी धर्म है, पर इस्लाम यहाँ तभी से है
जब से वो अस्तित्व में आया। ईसाई धर्म एक विदेशी धर्म है, पर यह भी बता दूं कि सन AD 52 से भारत में ईसाई धर्म भी है। और भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और धार्मिक परंपराएं विकसित हुई, ये हमारी मिली जुली परंपरा की निशानी है। ये मिली जुली परंपरा जो है, इसकी शुरुआत में अगर मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी साझी संस्कृति जो है, इस साझी जो विरासत है, ये साझी विरासत सभी जगहों से अपने चीज़ों को लेती है, सभी चीज़ों को स्वीकार करती है। और जैसा हमारे वेदों में वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल यूनिवर्स। दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूं। ये भारत की विरासत की मजबूती रही है। खैर, एक तरफ जैसे आप जैसे लोग जो आज साझी विरासत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो विरासत को केवल धर्म से जोड़ते हैं। और आजादी के आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश ने यहाँ राज्य करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया, तो उन्होंने देखा, खास तौर से 1857 की क्रांति विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति भी मुख्य रूप से एक किसान विद्रोह था। इसको हम गहराई से अगर देखें तो उन पर जो लगान का बोझ था उसके विरोध में, और फिर राजा लोगों को जो प्रिंसली स्टेट्स को जो समस्याएं थी, ये मेल जोल के कारण ये विरोध हुआ। पर उसमें देखिए हमारी साझी विरासत कितनी दिखती है। आपको याद होगा 1857 की क्रांति की चिंगारी लगाने वाले थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर के साथी तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो अंग्रेजों ने वो नीति जो ज्यादातर इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल उपनिवेशिक पावर लगाते हैं, डिवाइड एंड एम्परा, फूट डालो और राज करो की नीति के लिए वो बात चली जो साझी विरासत के खिलाफ थी। तो साझी विरासत में तो हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ा। 1857 तक हम देखते हैं हिंदू मुसलमान जो मुख्य कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन तो थोड़े संख्या में थे उस समय भी, आज भी हम लोगों को डरा रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। पर ये भी बता दूं कि आज भी क्रिश्चियन लोग भी 2.3% है, और उस समय तो खैर और भी कम रहे होंगे। तो जो ये हमारी साझी विरासत थी, उसमें मेल जोल महत्व की बात है। आज समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है, समाज की मुख्य समस्या है बेगुनाह लोगों का सांप्रदायिक दंगों में मारा जाना, बेगुनाह लोगों का सांप्रदायिक दंगों में मारे जाना। और सांप्रदायिक दंगे ये होते नहीं है, ये करवाए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे कैसे करवाए जाते हैं? समाज में एक नफरत पैदा करके, और ये नफरत पैदा करने की बुनियाद थी वो हमारी साझी विरासत के विरोध में जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको साझी विरासत के 2-4 बिंदु बता दूं। मैं राजाओं से शुरू करता हूँ। राजाओं में आप देखिए कि अभी तो राजस्थान में मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार है, पहले भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा की सरकार में एक मंत्री महोदय थे, उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में पढ़ा। अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। उन्हें ये बात स्वीकार ही नहीं हुई, क्योंकि उनकी विचारधारा, जिस विचारधारा से वो बिलोंग करते थे, उसमें तो पूरी चीज हिंदू मुसलमान के आधार पे है। तो उन्होंने किताबों को बदल दिया। आशा है आपने उस किताबों को वापस ठीक कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। खैर, क्या बदल दिया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए। अब ये बात, खैर कौन जीता कौन हारा इसके अलग मानदंड हो सकते हैं, पर मुख्य बात यह है कि उन मंत्री महोदय को बताने की जरूरत है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की फौज थी, पर अकबर खुद वहां नहीं थे। अकबर के बदले जो फौज का नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह। और राणा प्रताप केवल हिंदू के लिए नहीं थे, राणा प्रताप की सेना में बहुत बड़ा एक जनरल था, उसका नाम था हकीम खान सूर। तो दोनों फौजों में हिंदू हैं, दोनों फौजों में मुसलमान हैं, और आज हम इसको एक
हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में देखते हैं, जो पूरी तौर से ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति का आगे ले जाने का तरीका है। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई को हिंदू मुसलमान के रूप में बताया जाता है, पर इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। औरंगजेब की तरफ से शिवाजी से जो मुकाबला करने आता था उनका नाम था राजा जय सिंह, और अफजल खान से मिलने जब और शिवाजी महाराज जाने वाले थे तो उन्हें वाघनख ले जाने की सलाह जिसने दी थी उसका नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े जो सलाहकार थे उसका नाम था मौलाना हैदर अली, और अफजल खान के जो सचिव थे उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ये तो हो गई राजाओं की बात। आम प्रजा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्या वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां हैं प्रेमचंद और उनके पहले। आप लोग तो हिंदी साहित्य को ज्यादा जानते हैं कि हमारी संस्कृति में होली का कितना महत्व है, और होली का त्यौहार कितनी शान से सूफी संतों की दरगाह पे मनाया जाता था। इस त्योहार को मनाते थे जश्न ए चरागा, जश्न ए चरागा के नाम से इसको मनाते थे, और ये हमारी परंपरा का एक मुख्य बिंदु है। जो साझी विरासत की जब बात करूं तो दो चीजों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। एक तो हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण पर बहुत प्यारी प्यारी कविताएं हैं। सूरदास जी ने लिखी, मीराबाई ने लिखी, पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। सूरदास ने लिखी, मीराबाई ने लिखी, उसी के साथ रहीम खाने खाना और रसखान, इन्होंने भी भगवान कृष्ण के आदर में बहुत कविताएं लिखी। पुरानी बात है, आज की बात बताता हूँ। लगान फिल्मों का थोड़ा मैं ज्यादा उल्लेख करता हूँ, लोगों के बीच में लोकप्रिय होती है। लगान फिल्म में चौथे दिन की शाम को जब क्रिकेट का मैच चलता रहता है, गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और वहां एक वो आरती गाते हैं। वो आरती है, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। ख्याल कीजिए, इनके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर और संगीत देने वाले का नाम है AR रहमान। बीबीसी ने एक सर्वे किया था, सांझी विरासत की बात कर रहा हूँ, बीबीसी ने सर्वे किया था NRI इंडियंस के बीच में। एक NRI इंडियन हमारे बीच में प्रोफेसर महोदय है, उनका नमस्कार। तो उन्होंने सर्वे किया था, बताइए हिंदी फिल्मों के 10 सबसे लोकप्रिय भजन कौन से हैं। वो सब लोकप्रिय भजन आए, उसमें से 6 लोकप्रिय भजन ऐसे हैं जिसके गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफी। वो 6 गाने मुझे याद नहीं है, पर एक गीत का मैं उल्लेख जरूर करूंगा जो आप में से, क्योंकि आप अभी अगली जनरेशन में आ गए हैं, एक गीत आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। फिल्म बैजू बावरा, लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफी और संगीत देने वाले नौशाद अली। अब इससे ऊपर मैं क्या कहूँ कि भारतीय परंपरा के जो शास्त्रीय संगीत में शहनाई नाम का वाद्य है, शहनाई नाम का वाद्य बजाने वाले सबसे बड़े उस्ताद जो थे वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनका नाम है, पर हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर अपने संगीत को विकसित करते थे। खैर, अब ये एक तरफ चल रहा है। अब आज के भारत को थोड़ा सा जोड़ दूं, पूरा तो मैं जोड़ नहीं सकता, विषय बहुत बड़ा है, पर आज के भारत में एक बात आपने देखी होगी, अब विकास का तो खैर नारा बहुत जबरदस्त लग रहा है, पर हो रहा है ये कि शहरों के नाम बदले जाएं और बड़ी बड़ी मूर्तियों को खड़ा किया जाए। तो शहरों के नाम बदले गए, फैजाबाद हो गया अयोध्या, इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, मुगल सराय जंक्शन हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो एक पत्रकार महोदय, भारत के इतिहासकार इरफान हबीब साहब से इंटरव्यू लेने गए और इरफान हबीब साहब को पूछा, सर ये बताइए ये शहरों के नाम बदलकर क्या फायदा होगा। तो इरफान साहब भाई जो भी हैं, वैसे तो बहुत सेक्युलर हैं और बहुत, अब केवल उनके मुसलमान नाम पे मत जाइए, उनसे सरी का गहरे भी चिंतक मिलना बहुत कम है।
तो इरफान साहब कहते हैं कि ये लोग भारत की सांझी विरासत में से जो मुसलमानों का तत्व है, इस्लाम का जो तत्व है, उसको निकालना चाहते हैं, इसलिए ये उन शहरों का नाम बदल रहे। फिर इरफान साहब ने एक आक्रामक सवाल किया कि अगर इनको इतनी तकलीफ है इन शब्दों से, तो उन्होंने एक सरनेम बदलना चाहिए, और सरनेम है शाह। शाह, आजकल तो देश का सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति शाह है, तो वो शाह शब्द भी ईरान से आया है, याद रखिए प्रोफेसरों, दोस्तों, शाह शब्द ईरान से आया। शहनशाह, बादशाह, ये कहाँ के शब्द है, ये देख लीजिए। खैर, थोड़ा सा खाने पीने की भी चर्चा कर ली जाए। आप लोग 2 दिन से इसमें भाग लेके थक गए होंगे, थोड़ी खाने पीने की मजेदार बात की जाए। मेरा एक बहुत प्रिय डिश हमारी है, उसको कहते हैं बिरयानी। खैर, उसको परिचय करने की क्या जरूरत। हुआ यूं कि मुझे हैदराबाद रहने का मौका पड़ा 1 साल तक, तो उस दौरान बिरयानी खाने का बहुत अनुभव आया, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा बिरयानी पे रिसर्च कर लिया जाए। बिरयानी आई कहाँ से, तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ मसालों की कमी नहीं है, अच्छे कुक्स की कमी नहीं है, बिरयानी में और मसाला डाल के स्वादिष्ट बना के बन गई बिरयानी। तो ये हमारी साझी परंपरा, और इसका उच्चतम बिंदु तो धर्म की परंपराओं में मिलता है। जिस धर्म के नाम पर आज नफरत फैलाई जा रही है, राजनीति की जा रही है, हिंसा की जा रही है, उसी धर्म के अंदर 2 ऐसी महान परंपराएं हुई हैं जिन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ा, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियंस को हिंदू मुसलमान से जोड़ा। और उसमें एक परंपरा है भक्ति परंपरा। कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता हैं तो हिंदू नाम, और उनके मानने वालों में मुसलमानों की कोई कमी नहीं है। और उसी प्रकार से जो हमारे सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, इनकी दरगाहों में जाने वाले भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और भले ही भगत सिंह नास्तिक थे, पर मैं नैतिकता के आधार पे कहता हूँ, धर्म का जो मर्म है, जो लोगों को जोड़ता है, जो हमारी साझी परंपरा का सबसे बड़ा भाग है, वो है धर्म के नैतिक मूल्य। धर्म के नैतिक मूल्य, और उसके लिए कबीर का वो दोहा तो आप सबको जानते होंगे। मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। कबीर जो लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। यह एक तरफ धर्म का मर्म, और दूसरी तरफ आज के भारत में जो बात हो रही है कि उस मस्जिद के नीचे भी मंदिर था, उस मस्जिद के नीचे भी मंदिर था। एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई ये हमारे लोगों में नफरत फैलाने के लिए मंदिरों की बात ली गई, और मंदिरों की बात ली गई, मुसलमान राजाओं का उल्लेख हुआ, उस राजा ने वो मंदिर तोड़ा, उस राजा ने वो मंदिर तोड़ा, पर इसका उल्लेख नहीं किया गया कि उन्हीं राजाओं में से कई राजाओं ने मंदिरों को दान भी दिया। ये उल्लेख नहीं हुआ कि कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। कवि कल्लण की किताब राजतरंगिणी देखिए, राजतरंगिणी में लिखते हैं, 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे का निर्माण किया था, और उस ओहदे का टाइटल था देवोत्पतन नायक, यानी वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। आगे ये लिखा था, वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। तो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें भी तोड़ी गई थी कई कई जगहों पर उसको सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी चुनकर ऐसी चीजों को सामने प्रस्तुत किया जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत। और यहाँ से एक तरफ जहाँ आजादी का आंदोलन चलता है, जो सर्वसमावेशी है, साझा है, पूरा साझा है, आजादी का आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी का एक हाथ जिस व्यक्ति के कंधे पे था, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जो व्यक्ति उनके रास्ते पर चलकर सीमांत गांधी कहलाया, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक व्यक्ति जिसने पार्टीशन, भारत के पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया, उसका नाम था अल्लाह बख्श। ऐसी लंबी लिस्ट है जिन्होंने धर्म की सीमाओं, धर्म को सीमा के रूप में नहीं देखा, राष्ट्रीय आंदोलन को एक जोड़ने वाली चीज के रूप में देखा। और यहाँ मैं इसीलिए कहूंगा कि हमारी साझी विरासत की परंपरा भक्ति संतों से चालू होती है,
सूफी संतों से चालू होती है और वो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आजादी के आंदोलन तक आती है। और उसका मुख्य अर्थ ये रहता है, कि हम धर्म का मर्म है मानवता से प्यार, और राज्य का जो कर्तव्य है वो होना चाहिए लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और मानव अधिकार, ये राज्य का काम होना चाहिए। अब राज्य के काम, क्योंकि हमारी सांझी विरासत की परंपरा को ठुकरा दिया जा रहा है, एक परंपरा को सामने रखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, एक परंपरा को उन्होंने सामने रखा, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और वही पाकिस्तान में न साइंस का डेवलपमेंट हुआ, न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, न आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस आए, न बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस आए, और वहाँ की जो आर्थिक हालत है पूरा इंपोर्ट बेस्ड चली। जबकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर हम आए, जहाँ हमने पिछले 60 साल में, अब 10 साल को मैं छोड़ देता हूँ, वो अलग मामला है, क्योंकि 70 साल के लिए, आज की सब चीजों के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसने देश के विकास की नींव रखी, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कभी एजुकेशन, कभी बांध, कभी उत्पादन, कभी फैक्ट्री, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन चीजों पर उस पर दोष दिया जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। पर मैं आपको बता दूं, जिस भी देश में सांझी विरासत को रिजेक्ट करके केवल एक धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उसका विकास नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसका उदाहरण है, इस्लाम के नाम पर बना और धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर दो टुकड़ों में टूट गया। बांग्लादेश खैर अभी एक अलग रास्ते पर जा रहा है, उसका बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ आप श्रीलंका में भी देखिए, श्रीलंका में भी बुद्ध धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता आ रही है, म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता आ रही है। तो सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है जहां भी धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो देश का विकास नहीं हो सकता। आज आपके पास इतने पीएचडीज हैं, इतना साइंटिफिक मैन पावर है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इतना एटॉमिक डेवलपमेंट है, इतना स्पेस रिसर्च है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने धर्म को अपने विरासत के रूप में, एक मर्म के रूप में रखा, और राजनीति में धर्म को आधार नहीं बनाया। एक बहुत प्यारी सी कहानी मैं हमेशा बताता हूँ, जो मुझे बहुत रोचक लगती है। आज तो आप देख रहे होंगे हमारे बड़े बड़े नेता मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए मंदिरों में दान दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देश में गरीबी है, 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, आधे लोग नंगे रहते हैं, कितने लोगों के सिर पर छत नहीं है, और हम एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसका स्वागत है। आजादी के बाद कई लोगों ने मांग उठाई कि ये मुसलमान राजाओं ने हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, सरकार ने इसका निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी जिंदा थे, उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद ये सरकार का काम नहीं है। और इसी बात को लेकर नेहरू आगे गए, उन्होंने भाखड़ा नंगल का डैम का, जो आपके बहुत करीब है, उसका उद्घाटन करते समय कहा ये डैम, जो ये सिंचाई व्यवस्था की साधन, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो मंदिर की अलग अलग परिभाषा, मंदिर में या तो आप घंटी बजाइए, पूजा कीजिए, या मंदिर में शिक्षा प्राप्त कीजिए। मंदिरों की हर एक परिभाषा का मैं स्वीकार करता हूँ, पर दो अलग परिभाषाएं देश के इसके बारे में आ गई। तो खैर, जो भगत सिंह ने रास्ता बताया, उसकी एक एक रचना को आप पढ़ो। भगत सिंह के रास्ते पे एक एक रचना में है कैसे गरीबी दूर हो, कैसे मजदूरों के अधिकार मिले, कैसे किसानों के अधिकार मिले, कैसे जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, कैसे हम समता के आधार पर, बराबरी के आधार पर देश को आगे ले चलें। तो खैर, मुझे इसलिए ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने केवल भगत सिंह तक सीमित न रखते हुए इसको व्यापक दिशा में लिया। और आज देश की जो हालात हैं, पिछले 7-8 साल से हमारी आर्थिक परिस्थिति किधर जा रही है। 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जब दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, भारत में पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सवेरे ही पत्नी यहाँ देख रही थी, हमारे घर में वो पाइप गैस है, तो अभी तक पाइप गैस हमें लगता था सस्ता पड़ेगा, पर पाइप गैस की भी कीमत बढ़ रही है। और ये मुख्य रूप से इसलिए कि हमने जो मुद्दे उठाए वो अपनी परंपरा के आधार पे नहीं उठाए,
सांझी परंपरा के हिसाब से नहीं उठाए, संकीर्ण एक परंपरा को हमने अपनी परंपरा मान लिया है और उसी परंपरा के नाम पे कहीं भी नारा उठता है मंदिर वहीं बनाएंगे, एक मंदिर बन गया है दूसरा मंदिर बनाएंगे, तीसरा मंदिर बनाएंगे, ये बात होती है। या फिर गौ हमारी माता है, उसके आधार पे काउ साइंस और अभी अभी क्या क्या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना पड़ेगा मुझे पता नहीं है, पर खैर विज्ञान में एक वेटरनरी साइंस भी है, हम लोग ये भूल जाते हैं, जिसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं और एक भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज में नफरत की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है। सांझी विरासत धर्म की नैतिकता के आधार पे समाज को जोड़ती है ताकि समाज का विकास हो, और संकीर्ण विचारधाराएं, धर्म की संकीर्ण समझ समाज में नफरत फैलाती है, समाज को बांटती है और विकास के रास्ते को रोककर हमें एक ऐसी स्टेज पर ले आती है जहां गरीबी, भूखमरी, बेकारी पहले से बढ़ती रहती है, भाषण और दावे पहले से सुधरते जाते हैं और लोगों की हालत अगर हम समाज में जाकर देखें तो पहले से बिगड़ती जा रही है। तो ये जो आज का भारत की बात आपने की, आज के भारत में मुझे सबसे दुख इस बात का हो रहा है कि जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, जो हमें बताते हैं कि लोग, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ संविधान हमें कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर शुड बी द बेसिस, इट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। साइंटिफिक टेम्पर के को अलग छोड़कर ऐसे ऐसे बाबा लोग कोरोना की दवाइयां निकाल रहे हैं, ऐसे सुपरफिशियल रिसर्च की बात कर रहे हैं जिसकी साइंस में कोई जगह नहीं है, और ऐसे लोगों को समाज में ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने कोरोना का संकट तो बहुत बड़ा था, उसमें साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है और सब लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, पर इसी ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अपने दावे उस आधार पे किए जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। तो आज के भारत में ऐसे भी लोग दावे कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि पूरा ज्ञान हमारे पुराने ग्रंथों में है, पूरा ज्ञान हमारे पुराने ग्रंथों में है, तो फिर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की क्या जरूरत है? ये भी एक समझने की बात है। और यूनिवर्सिटी के रिसर्च का फंड अभी किस तरफ डाइवर्ट होगा वो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना समझता हूँ कि धर्म के दो पहलू हैं, एक जो हमें मानवता सिखाता है, दो जो हमको नफरत करने पे मजबूर करता है। और आज धर्म का वो पहलू सामने है जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसके कारण, नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं, दंगे करने के कारण हमारे समाज में जो संकीर्णता आ गई है उसको दूर करना ये हमारा काम है। तो आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी श्रद्धांजलि देते समय मैं केवल एक उम्मीद जाहिर करना चाहता हूँ इस अच्छी सेमिनार में, कि हम इस मर्म को समझें कि वास्तव में हम सब लोग भारतीय हैं, भारतीय भी हैं, इंसान भी हैं। बीच में जो नफरत फैलाई गई है उस नफरत को दूर करना मेरे ख्याल से शिक्षकों का सबसे बड़ा काम है। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, पर यह भी बताइए उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, ये भी बताइए हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। ये गहराई की चीजों को जब तक हम लोगों तक नहीं ले जाएंगे, समाज में नफरत यूं ही बनी रहेगी। नफरत के कारण स्वार्थी राजनीतिक प्रवाह, स्वार्थी राजनीतिक प्रवाह एक पाते रहेंगे, समाज को संकीर्ण बना के समाज को पीछे ढकेलते रहेंगे। और जो सपना भगत सिंह का था, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, आम लोगों के अधिकार, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि धर्म के नाम पर आज जो संकीर्णता फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर आज जो राजनीति की जा रही है, उससे अलग हटकर उस सांझी विरासत की तरफ आए जो हमारे आजादी के आंदोलन का आधार था, और वही आधार पे चलकर भारत का विकास हो सकता है। अगर ये बात हम अपने विद्यार्थियों तक, सहयोगियों तक, समाज में ले जाएं तो निश्चित रूप से शिक्षकों के रूप में समाज में हम एक अच्छा संदेश दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। The host is not allowed.
बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें मौका दिया आप के लेक्चर को सुनने के लिए। अदरवाइज हम लोग ने कई आपके वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज लाइव सुनने का मौका मिला, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के भी बहुत ज्यादा आभारी हैं। Dr. Punyani is a professor of biomedical engineering, but he speaks on Indian history with such an authority that anybody would take him as a professor of history. I have not heard even the professors of history mentioning facts with such an ease and confidence. In every lecture of Dr. Punyani ji, the take-home message that we get is communal harmony. He talks only of love, warmth, affection and harmony. अगर हम सबकी सोच इतनी स्वस्थ और सकारात्मक हो जाए तो हमारा सारा जहान कितना खूबसूरत, खुशनुमा और स्वर्णिम हो जाए। सर के लेक्चर काफी बेबाक और बोल्ड होते हैं। लोग सच कहने से डरते हैं, लेकिन सर डॉक्टर पुनियानी जी एकदम बेखौफ होकर सारी बातें सच्चाई के साथ हम सबके साथ शेयर करते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि बहुत बिफिटिंग है इस टाइम। ये इकबाल का शेर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि लोगों में वो बेबाकी नहीं है, वो बेखौफपन नहीं रह गया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर ने बात की कि भगत सिंह जी जो हैं, वो उनका कहना था कि जन आंदोलन ही देश को स्वतंत्र कराने का एकमात्र रास्ता है। ये सच है। अब मेरा ऐसा ख्याल है और मैं सोचता हूं कि यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का यही ख्याल होगा कि एक जन आंदोलन प्रेम और मोहब्बत का भी होना चाहिए, कि जो प्रेम और मोहब्बत को भी आम करने के लिए हो। ये मैसेज जो सर के लेक्चर से हमें मिला, दिस वाज द बॉटम लाइन, that love and warmth should be spread everywhere. Communal harmony should be there everywhere. Thank you so much, sir. I have no words in it. You know, I'm at a loss of words to express my gratitude to you for such a wonderful lecture that was mesmerizing, fascinating, and also very informative. Thank you. We now take your leave with these lines. कली कली को खिलाएंगे हम चमन के लिए, नए चिराग जलाएंगे अंजुमन के लिए। आओ अहद करें मिलके ये कसम खाएं कि जिएंगे और मरेंगे तो हम वतन के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। Now let's all stand for the national anthem.